हेलो। इस वीडियो में हम चेकआउट करते हैं ऑड्स के बारे में. व्हाट इज ऑड्स? सी, probability we have seen the classical definition of probability is that the probability of an event is probability of an event, say A, is number of favorable simple event to A divided by total number of simple events. Simple event in sample space S. So this is the classical definition of probability. Okay, and as you can see over here, it is in fact the ratio. Okay, ratio of number of favorable simple events to A, and total number of simple events means elementary events. Simple events means elementary events. ठीक है, आप सेट थ्योरी में उसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. तो द नंबर ऑफ फेवरेबल सिंपल इवेंट टू ए divided by total number of simple events in S, that is in fact a ratio, and this ratio lies between 0 and 1, or you can say that the ratio is less than equal to 1 always. Correct? This ratio is less than equal to 1. Now what about the odds? Odds is also a ratio. Odds is also a ratio, but odds दो प्रकार के होंगे. Two types of odds are there. Odds in favor of event A and odds against event A. तो एक इवेंट ए है विथ रिस्पेक्ट टू अ सैंपल स्पेस एस. अब ऑड्स हम जो चेकआउट करने वाले हैं वो दो प्रकार के होंगे. odds in favor of event A and odds against event A, and in fact it is also a ratio, but ratio of what? So suppose there are total n simple points in a sample space, or m are favorable. Suppose the n of s is n. ठीक है, n of s is n, that is the n elementary events in a sample space, out of which m are favorable to event A, and therefore n minus m are not favorable to event A, that is favorable to not A. करेक्ट है? ये बात हो गई क्लियर? यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं. n of s, that is the n elementary events, and m events are favorable to event A, so therefore n minus m events are not favorable to event A. Correct? Total number of elementary events are n in a sample space S, and m are favorable to event A, and n minus m are not favorable to event A. Then the odds in favor of event A is given by m by n minus m. ठीक है, and odds against even A, against मतलब इसके फेवर में जो अगेंस्ट है, नॉट ए के फेवर में n माइनस एम होगा, सो n माइनस एम डिवाइडेड बाई m, ये होगा. ठीक है, आप तो पहले इसको देख लीजिए. ये क्या चीज है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब एलिमेंट्स, ये सैंपल स्पेस में n है. n में से m जो है वो इवेंट a को फेवर कर रहे हैं. इसका मतलब n माइनस एम इवेंट a को फेवर नहीं करेंगे. करेक्ट है? तो अब ये m बाई एन माइनस एम, इसको हम बोलेंगे ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट a, और n माइनस एम बाई एम इज ऑड्स अगेंस्ट इवेंट a. तो ये फिर से रेशियो ही है, मगर इस रेशियो की खासियत क्या है? इट कैन बी मोर देन वन. It can be more than 1. It can be more than 1. So the odds can be more than 1. Whereas the probability is always less than equal to 1.
ओके, आर प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो ठीक है, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कैसे इसको कन्वर्ट करूँगा उसको देखते हैं। तो देखो, इसको तो मैं लिख सकता हूँ m/n डिवाइडिंग बाई n-m डिवाइडेड बाई n, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही वाला चीज़ रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। और इसको भी देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ हो सकती है, n-m डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड m/n। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड कर दिया। n से डिवाइड करने से ये जो रेशियो है वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी P0 A डिवाइडेड बाई P ऑफ A, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपने ये प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए निकाला और ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए। यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली बाय यूजिंग दीज रेशियो, okay, n-m/m or m/n-m, or you can find out by using in terms of the probability that the odds in favor of event A is P of A divided by P of not A, and odd against event A is P of not A divided by P of A. I hope that ये points clear हुआ होगा। check it out, ठीक है। तो ये देखिए रेशियो है, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी में। ये देखिए रेशियो है, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये भी रेशियो है, लेकिन रेशियो क्या है यहाँ पे, सक्सेस टू अनसक्सेस है, अनसक्सेस टू सक्सेस है। वेर एज प्रोबेबिलिटी भी रेशियो है, लेकिन सक्सेस टू टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब सक्सेस टू सक्सेस प्लस अनसक्सेस, ये रेशियो था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सक्सेस टू अनसक्सेस और अनसक्सेस टू सक्सेस, इनका रेशियो, इसलिए ये रेशियो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा odds. I hope that odds in favor of an event and odds against event A is clear. अब इसके ऊपर प्रॉब्लम चेकआउट करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स नोट किया है। इफ देयर इज अ 30% चांस ऑफ विनिंग, फाइंड द ऑड अगेंस्ट विनिंग। अगेंस्ट पूछा हुआ है, तो 30% चांस ऑफ विनिंग मतलब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है विनिंग की। ए विनिंग एक इवेंट है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P of A, दैट इज 30/100, that is 3/10, and therefore जो P0 A, not winning मतलब losing, so P0 A will be 7/10, there is no problem with that, and we have to find out the odd against winning। अगेंस्ट विनिंग का जो ऑड होता है वो होता है, अगेंस्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोमिनेटर में रहेगा। तो 7/10 डिवाइडेड बाई 3/10, ऑफकोर्स 7/3 will be our answer. So 7/3, as you can see that it is more than 1 because we are finding the odds. Odds is in fact a ratio of what? Success to unsuccess or unsuccess to success, whereas the probability is the ratio of success to total number of cases, that is total number of cases can be success plus unsuccess. So because of that it can be more than 1. Okay, come to the second one. If the odd against winning odds ratio are 2:1, now odds are already given but अगेंस्ट दिया हुआ है, फेवर में नहीं है। 2 वर्ड याद रखना, एक फेवर और एक अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में दिया हुआ है ये ऑड अगेंस्ट विनिंग, ये दिया हुआ है 2:1, दैट इज 2/1। अब 2/1 से आप क्या आइडिया लगाएंगे, ये ऑलरेडी ऑड दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल केसेस जो हो गए वो 3 हो गए, जिसमें से अगेंस्ट है तो विन कर रहा है 1 बार और 2 बार वो लूज कर रहा है। नॉट विनिंग केसेस 2 है और 1 टाइम वो विन कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 3, बस हो गया, खत्म काम। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग चूंकि ये अगेंस्ट है तो ये नॉट फेवर वाला केस है और ये फेवर वाला केस है, करेक्ट है कि नहीं। तो विनिंग क्या हो जाएगा 1/3, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग भी निकल जाएगा, दैट विल बी अगेन 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इज 2/3, ये है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे केस कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, या फिर एक काम करो 2/3 से डिवाइड कर दो, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो दैट कैन बी 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3
और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ठीक है, आई होप दैट कोई प्रॉब्लम में इश्यू नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। Now taking this problem, if there is a 0% chance of winning, probability given है, can we find the odd against winning? So the winning की probability है, winning की probability दी हुई है, that is 0/100, 0% का मतलब 0 हो गया, तो probability of not winning आ जाएगा। तो not winning तो इसका 1 हो जाएगा, तो ये 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 0 है तो नॉट विनिंग 1 हो जाएगा। अब आपको निकालना है ऑड अगेंस्ट विनिंग, तो ऑड अगेंस्ट विनिंग, तो ऑड अगेंस्ट विनिंग क्या होगा, अगेंस्ट है तो नॉट वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, एक को मैंने विनिंग मान लिया, ठीक है, तो नॉट विनिंग, और ये तो आपका 1 है, 1/0, ये डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, and because of that we can say that we cannot find out the odd against winning if there is a 0% chance of winning. So in this question we cannot find out, we cannot determine the odd against winning. I hope that problem clear हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। In a single cast, with 2 dice, the odd against drawing 7 so in a single cost with 2 dice, dice 2 है, तो odd against drawing 7 is 7 ड्रॉ करना है और उसके अगेंस्ट में ऑड फाइंड आउट करना है, तो 2 डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 हो जाएंगे, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 36। अब मुझे पहले तो जहाँ जहाँ 7 आता है, सम कहाँ का 7 आता है, तो देखो वो जो इवेंट होगा वो ए होगा, तो 1 + 6 7 हो जाएगा, 1 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 5 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा, 4 3 भी आ जाएगा, ओके, फिर 5 2 भी आ जाएगा, और फिर 6 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल एन ऑफ ए इज 6 हो गया, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया 6/36, 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए भी मिल जाएगा 5/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 5/6, करेक्ट है। तो अब यहाँ से आप ऑड अगेंस्ट ड्रॉइंग 7 निकाल सकते हैं, तो ऑड अगेंस्ट ड्रॉइंग 7, तो अब ऑड अगेंस्ट निकाला जा सकता है। ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ नॉट ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए, तो नॉट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है, और ए की प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, ओवरऑल ये 5/1 होगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने भी ऑड अगेंस्ट और ऑड फेवर टू द गिवन इवेंट ये आपने चेकआउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 2 इवेंट्स ए एंड बी, इफ ऑड अगेंस्ट इवेंट्स ए आर 2:1, तो देखो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। ऑड अगेंस्ट ए इज 2:1 मतलब 2/1, ठीक है, एंड दोज इन फेवर ऑफ ऑड्स, फेवर में फेवर ऑफ ए यूनियन बी इज 3:1, तो यहाँ से डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट है
इसका मतलब ये नॉट फेवर होगा और ये फेवर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा 1/3, करेक्ट है। और ऑड्स इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी, टोटल केसेस 4 होंगे, और फेवर करेंगे 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी मिल गया 3/4, करेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो ये अगेंस्ट है तो फेवर करने वाला ये केस 1 होगा और टोटल केस 3 होंगे, और ये फेवर में है तो ये 3 इसको फेवर करेगा ए यूनियन बी को, और टोटल केस 4 होंगे। So straightforward you can find out the probability of A and probability of A union B. That's fine. There is no question with that. But we have to check for this option A, B, C and D. And the option is asking for the probability of B. Probability of B and probability of B. How to find out? अब ये लेस देन और इक्वल टू का भी साइन है, मतलब इनइक्वालिटीज में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर यहाँ से माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया नहीं है, और ऊपर से आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी में रिलेशन करना है, तो ये लेस देन इक्वल टू, अगर इसको हटा दिया तो ये इसके इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है। इक्वल तब हो सकता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, तो या तो ये इसके लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। अब आप देखिए ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये निकल जाएगा इसमें। तो ये बात समझ में, पहले एक चीज देखे थे कि दैट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ये निकलती है इनइक्वालिटी में, ये इसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है अगर ये 0 हो जाए, या फिर इससे छोटा हो जाए, तो लेस देन इक्वल टू। आई होप दैट कोई इश्यू नहीं है, ठीक है साहब। तो यहाँ से अब आप, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव नंबर से, तो आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब पी ऑफ बी ये जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ ए होगा। और पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? पी ऑफ ए यूनियन बी इज 3/4, दिस इज -1/3, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5/12। तो पी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/12, तो ऑप्शन नंबर बी तो क्लियर हो गया। सो 5/12 इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ बी, एंड ऑफकोर्स इट इज लेस देन इक्वल टू 3/4, बिकॉज पी ऑफ बी जो है वो ए यूनियन बी से हमेशा छोटा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4 है। तो आप वेन डायग्राम में भी आ जाते हैं, ये ए और बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेफिनेटली छोटा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। तो ये देखिए, ये हिडन कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट है। तो ये था रियल स्टूडेंट्स, ऑड्स इन फेवर इवेंट्स एंड ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए, करेक्ट है। एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें और इसको खत्म करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और वो क्या क्वेश्चंस है? इन अ टेनिस टूर्नामेंट द ऑड्स दैट प्लेयर ए विल बी द चैंपियन इज 4-3। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चैंपियन दिया हुआ है, ए चैंपियन होएगा। अब ये देखो, ऑड्स दैट प्लेयर ए विल बी चैंपियन, इसका मतलब 4 आपका फेवर कर रहा है उसको। टोटल केस होगा 7, ये हो गया 4/7, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, क्लियर है। उसके बाद में देखिए, ऑड्स दैट प्लेयर बी विल बी चैंपियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चैंपियन इज इक्वल टू, ये 1 फेवर कर रहा है मतलब 1/5, यहाँ तक ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गया। तो व्हाट आर द ऑड्स दैट आइदर ए और बी? अब ए और बी दिया हुआ है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तब जाके अगर ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी या ऑड्स अगेंस्ट द ए यूनियन बी ये निकाल सकते हैं।
तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको देखना कि देखिए ये जो ए प्लेयर है और बी प्लेयर है, ये चैंपियन बनते हैं, ये सेपरेटली बनते हैं, इंडिपेंडेंटली बनते हैं, इनमें कोई कॉमन बात नहीं होती है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमेशा 5 होगा या 0 होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी एक 5 सेट होगा और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट प्लेयर्स, तो कोई कॉमन वाली बात नहीं है यहाँ पर। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यू कैन फाइंड आउट directly probability of A plus probability of B, that will be 4 by 7 plus 1 by 5, 27 by 35 ये होगा 27 by 35। so therefore probability of not of A union B ये हो जाएगा 1 minus 27 by 35, 3 8 by 35, कैलकुलेशन देख लीजिए, यस 8 by 35 ये हो गया। अब मुझे निकालना है ऑड्स निकालना है ए यूनियन बी का, ओके, बिकम चैंपियन मतलब फेवर में निकालना है ऑड्स। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी, फेवर में है तो पहले ये आएगा 27 by 35 एंड डिवाइडेड बाय 8 by 35, फाइनली ये 27 by 8 आएगा, 27 by 8 ये हो गया। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं इन अ टेनिस टूर्नामेंट, द ऑड्स दैट प्लेयर ए विल बी चैंपियन। अब यहाँ पे डायरेक्टली फेवर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, अगेंस्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो ये चैंपियन जो वर्ड है वो फेवर कर रहा है, इसका मतलब 4 to 3 है, टोटल केस 7 है, 4 times वो चैंपियन बनेगा और इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चैंपियन इज 4 by 7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 1 by 5, and this is also very important, that is the probability of A intersection B will be 0 because A and B both are champion separately, वहाँ कोई common नहीं है, ठीक है, fine, but we have to find out the odds that either A or B, either A or B इसका मतलब A यूनियन B की बात कर रहा है, तो A यूनियन B के फेवर में ऑड्स निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी मालूम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए यूनियन बी मालूम होना चाहिए, क्लियर है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दिस इन दिस वे वी हैव फिनिश दिस ऑड्स, करेक्ट।